આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે ભાજપ પર તીવ્ર આક્ષેપ કર્યા। તાજેતરમાં આપના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીમાં કાનૂન અને વ્યવસ્થા ઉપર ગંભીર ચિંતાઓ વ્યક્ત કરતા ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર આક્ષેપ કર્યા છે કે તેણે દિલ્હીને ભારતમાં અપરાધી રાજધાની બનાવી દીધી છે। કેજરીવાલે જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં ચોરીઓ, ચેન ખૂણવણ, ગેંગ યુદ્ધો જેવા ગુનાઓ વધ્યા છે, જેના કારણે મહિલાઓ માટે ઘરની બહાર જવાનો સુખદાયક અનુભવ કરવો મુશ્કેલ બની ગયું છે। કેજરીવાલના આક્ષેપો આજકાલ આપ અને ભાજપ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે થયા છે, જેમાં બંને પક્ષો એકબીજાની વિધાનિક કામગીરીને ટકાવી રહ્યા છે। કેજરીવાલે કહ્યું, ભાજપ દિલ્હીના લોકોમાંથી નફરત કરે છે। તેમની નફરતને કારણે તેઓ છેલ્લા 25 વર્ષથી દિલ્હીમાં સત્તા ઉપર નથી આવ્યા। તેમના ટિપ્પણીઓથી અહીં એક તીવ્ર રાજકીય સ્પર્ધા દેખાય છે, જેમાં કેજરીવાલે ભાજપનો નફરત પક્ષે તેમના માટે દિલ્હીમાં સત્તા મેળવવાનો રસ્તો અવરોધી છે। આપના યોજના ઉપર વધુ વિસ્તારથી ચર્ચા કરતા કેજરીવાલે જણાવ્યું કે જો આપ સરકાર બનાવે તો નાગરિક સમિતિઓને દિલ્હી સરકારથી તેમના વિસ્તારમાં ખાનગી સુરક્ષા રક્ષકોની નિમણૂક માટે ફંડ આપવામાં આવશે। આ પહેલ કેજરીવાલના મુજબ પોલીસને બદલવાની યોજના નથી, પરંતુ સિટી નાગરિકોના માટે સુરક્ષા યોજનાઓને મજબૂત બનાવવાનો છે। તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે નિવાસીઓને સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે, ખાસ કરીને ગુનાઓના વધતા દરને ધ્યાનમાં રાખતા। કેજરીવાલે ભાજપના ચૂંટણી નીતિ પર ચડતર મારીને કેજરીવાલે ભાજપની ચૂંટણીની રીત પર પણ હુમલો કર્યો। પાર્ટી ઉપર રોહિંગ્યાનો કાર્ડ ભરીને પરવાચલ વિસ્તારમાં મત કપાવવાનો આક્ષેપ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે તેમણે તાજેતરમાં ચૂંટણી કમિશનર પાસે ફરિયાદ કરી હતી કે ભાજપ પરવાંચલ વિસ્તારમાં લોકોના મત કપાવવા માટે રોહિંગ્યા મુદ્દાને વાપરી રહ્યો છે। કેજરીવાલના દાવા મુજબ આ રણનીતિ એ વિભાજક અને અસમાનતા વધારવાની છે અને આપના નેતા દ્વારા ટિપ્પણીઓ દિલ્હીમાં રાજકીય ચર્ચાઓને ઉત્સાહિત કરી રહી છે અને જ્યાં બંને પક્ષો પોતાના દાવાઓ સાથે પોતાની ભૂમિકા ગાળી રહ્યા છે અને જ્યાં કેજરીવાલે બીજેપીના સુરક્ષા અને ચૂંટણી નીતિ પર આક્ષેપ કર્યા છે, ત્યાં બીજેપી હજુ સુધી દાવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપવાનું રોકી રહી છે। દિલ્હીનું ભવિષ્ય અને રાજકીય સ્પર્ધા દિલ્હી માટેનું લડાઈ વધુ તીવ્ર થવાની છે, જ્યાં આપ અને ભાજપ બંને શહેરની સુરક્ષા અને વિકાસ તથા નાગરિકોની ભલાઈ ઉપર ધ્યાન આપી રહ્યા છે। કેજરીવાલે RWA માટે ખાનગી સુરક્ષા ગાર્ડની નિમણૂક પર જે ખાતરી આપી અને ભારતની ચૂંટણી નીતિ ઉપર તેમના આક્ષેપો આવતા ચૂંટણી માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે। બંને પક્ષો પર સોમવાર માટે ચિંતાઓ વધી રહી છે। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज़ के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाए,
अब कोई भी अपराध होता है तो उस सीसीटीवी कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWS के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। अगर आपके कोई एक आध क्वेश्चंस है तो बता दीजिए। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही JP नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने MLA पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तो हमारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, CCTV कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है, और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली।